And we are back with yet another episode of Spill the Beans on CNN News 18. Ladies and gentlemen, I'm Sakshi Singh Litoria, your host. Present with me today is the cast of Ardas, directorial debut of Gippy Grewal ji, of course. And you can see all the familiar faces. Very beautiful Jasmine as well. And we have been watching you since your comedy shows, and we have seen you grow as an actor also. Sarbat De Baledi. What does that exactly mean? Because we all are not Punjabi. So we really want to understand the kind of messaging that you want to deliver to your audience through Ardas, because this sounds like this is going to be a religious movie. What exactly is new in it? एक्चुअली एक तो मैं बताऊं कि कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस मूवी है। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस मूवी है। सो फिल्म बनाने का जो पर्पस था पहली फिल्म से लेके अभी तक का, वो मेरा ये था कोई भी आदमी किसी भी धर्म से कोई भी हो सकता है, जिसको कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ मिलना नहीं है, हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा है। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों की कहानी उठाई थी, जिसको एक कैरेक्टर है गुरमुख सिंह जी का, जो मोटिवेट करता है, जो लाइफ जीनी सिखाता है। तो वो था। सो पहली फिल्म अरदास थी, दूसरी अरदास करा और तीसरी अरदास सरबत दे पले दी। सो अरदास सरबत दे पले की जो मीनिंग है इसका, बेसिकली अरदास का मीनिंग तो प्रेयर ही है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपने अपने गॉड को, अपने अपने परमात्मा से जो प्रेयर करते हो। सरबत दे पले दी हमारे रिलीजन में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी आपने अरदास करनी है, आपने प्रेयर करनी है, कभी भी अपने अकेले के लिए नहीं करनी, सबके लिए करनी है। सो ये मान के चलो कि बस ये हम एक अरदास कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। फिल्म में भी यही मैसेज है और हमारा टाइटल भी यही है। Beautiful. That's a really beautiful message, ladies and gentlemen. How are you, by the way, first of all? I'm very good. I'm really good now. ठीक है. Your Bollywood debut happened with Gippy Ji. Yes. And now you are back and you have already worked with him on couple of projects. What's different this time around? How the relationship between two of you as co-workers have grown over the years, over the projects? What is different this time is that he's also my director. He's also my director, and it was a beautiful experience because as co-actors, people share a different chemistry. But as a director, as a कैप्टन ऑफ द शिप, एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी समझ आता है, एंड दैट इज़ वॉट आई लर्न अबाउट हिम, दैट यू नो ही इज़ सो गुड एट कीपिंग एवरीबडी टुगेदर and moving on, treating everybody equally, never making anybody feel small or big. These are some beautiful things, and over time the relationship has become of so much more respect. I look up to him and I learn so much from him. Beautiful. Gurpreet ji, you've been part of couple of projects in Bollywood also. And you are the extremely, extremely famous face in Bollywood. What is that key difference that you have found out while you have worked for Bollywood and Bollywood as well? Actually, there was a time when I was staying in Mumbai only. So at that time, I got some opportunities. So I just wanted to avail. But you know, Punjabi cinema was my first love. But the moment Punjabi cinema started, it was not a very good time for Punjabi cinema. We were having only 1 or 2 movies in a year. So that was not good enough for me as an actor if I am getting just 1 movie or 2 movies in a year. So I was depending more upon television. So I was doing Great Indian Laughter Challenge and Comedy Circus and other things. So when we see the Punjabi cinema is growing, I just changed my decision. I just came back to Punjab. When then there were so many opportunities in Punjabi cinema after Manmohan ji started this new era of Punjabi cinema. Ji Ayan Nu, Asanu Maan Watna Da, Yara Nar Bahara. So मुझे लगता है कि ये जो इनका कैरी ऑन जट्टा से पहले अगर एक बढ़िया नाम था तो वो इनकी जो दिलजीत और आपकी फिल्म थी, हाँ, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, तो एक आई थी मेल करा दे रब्बा, और एक तेरा मेरा की रिश्ता, नहीं उसकी यार नहीं, वो सही नहीं, जो गाना शेरी का बड़ा हिट हुआ था, यारन मुल्ले। तो ये 3-4 मूवीज़ ऐसी आई थी जिन्होंने एक सिनेरियो चेंज किया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब हिंदी सिनेमा में इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाबी में सिनेमा बनने लगा।
तो हम 5-5, 6-6 मूवीज़ एक साल में करने लगे। और जो बॉलीवुड है वहाँ पे आपको दिक्कत क्या है कि वो आपका टाइम बहुत लेते हैं फिल्मों में और काम बहुत कम करवाते हैं। फिर आपके पैसे उतने ही होते हैं वहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा हीरो जितने पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, टाइम ज़्यादा लेके कम पैसे मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ हमने अपनी एक पंजाबी में जगह तो बनी चुकी थी, तो फिर उसी को कैश किया कि पैसे भी आएंगे, अच्छा काम भी करेंगे और पंजाबी सिनेमा को ग्रो करते हुए भी देखेंगे। That's really interesting. And my next question to you would be regarding that only. क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना रीजनल सिनेमा या स्टेट सिनेमाज जो है they are blending a lot with the mainstream Bollywood industry. And in fact, in turn, we are seeing that Bollywood is taking over or making the remakes of the regional movies that are extremely well and are, you know, big budget movies from the state. Do you think that overall Punjabi entertainment industry or Bollywood say is also going to take over Bollywood in the coming time, or maybe the blend is going to happen eventually of all the state cinemas and entertainment? देखो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि काम किसने करना है, काम फिल्मों ने करना है। जिसने अच्छी फिल्म बनानी है, जो मेहनत करेगा वो भागेगा, जो भागेगा वो आगे आएगा, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, जैसे कुकी भाजी ने बोला कि मैं पंजाब आ गया तो हमने यहाँ पे अपनी नई दुनिया बना ली। हम अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी फिल्में बना रहे हैं, अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। हर बंदे का कहानी कहने का स्टाइल अपना अपना होता है, तो हम अपने तरीके से अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। क्योंकि कहानियाँ थोड़ी बहुत ही होती हैं दुनिया में, कहने का स्टाइल है। फिल्म मेकिंग इज़ बेसिकली स्क्रीन प्ले क्या है, ऐसी कहानियाँ हो सकता है आपने बहुत सुनी हो। मेरा एक अलग तरीका है, जैसे मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। तो जो अच्छी फिल्म बनाएगा लोग उसको देखेंगे। अभी पंजाब का तो देखा जाए वो तमिल तेलुगु के साथ हमारा कोई, हम एक देश में हैं, वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, हम यहाँ के हैं, बट समझ हमें कुछ नहीं आता। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग कौन है। हमने बाहुबली सिनेमा में देखी है, Exactly. है ना। वो फिल्म अच्छी थी तो उन्होंने हमें मजबूर किया कि भाई हमने अच्छी फिल्म बनाई है, आओ देखो, सिनेमा में देखनी पड़ेगी आपको। हमने पैसे खर्चे, हमने देखे। तो मुझे लगता है कि जिस दिन हम वैसी फिल्में बनाएंगे, और अभी ये कुछ ही टाइम की बात है जो कुकी भाजी बोल रहे हैं, कुछ साल पहले फिल्म का कुछ पता नहीं होता था और अब हमारी फिल्में 100-100 करोड़ करने लग गई हैं। तो डेफिनेटली अगर हम कोई बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे जिस पे हम लगे हुए हैं, हमें स्कोप है, क्योंकि ये एक सिनेमा वो सिनेमा है कि ये कहीं भी जा सकता है। मतलब ये अगर निकलने पे आए तो ये इंटरनेशनली कहीं पे भी जा सकता है। हम उन फिल्मों पे भी काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है हमें, और डेफिनेटली हम उसी पूरी कोशिश में हैं कि आगे निकलें। एंड आई डोंट थिंक किसी भी रीजनल सिनेमा की ये कोशिश होती है कि टेक ओवर कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर ऑल वन कंट्री, वी आर ऑल प्रोड्यूसिंग कंटेंट। हाँ ठीक है, अ ब्लेंड ऑफ इट इज समथिंग ब्यूटिफुल, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो ऑडियंस भी हमारी वाइडन करती है। एंड एज आर्टिस्ट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, बट आई डोंट थिंक एनीबडी वर्क्स विद दैट स्पिरिट कि हम टेक ओवर कर ले या किसी की मार्केट खराब कर दे। Also, since you are a very famous television face also, television से screen तक का सफ़र, if I would ask you to describe, which space has been more comfortable for you so far, and what do you think is lacking कि ना television industry के चेहरे बहुत ज़्यादा बड़े पर्दे पर नहीं आ पाते हैं या struggle कर रहे हैं आने में? Is there something that you would like to suggest to the mainstream entertainment industry, you know, that we are television artists see and we deserve to be treated like this? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इट इज़ विथ स्पेस दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। आई एम एन आर्टिस्ट, इट्स कैमरा दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी एंड दैट मेक्स मी कंफर्टेबल। फॉर मी प्लेटफॉर्म डजेंट मैटर ऑनेस्टली, बट येस वन ड्रॉबैक इज़, एंड दैट इज़ नॉट इन रीजनल सिनेमा बट स्पेसिफिकली इन हिंदी सिनेमा, टेलीविजन एक्टर्स आर लुक्ड डाउन अपॉन। ओ यू हैव डन टेलीविजन, यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 years, यू नीड टू ब्रेक दैट आइडेंटिटी कि आप टेलीविजन एक्टर हो। मुझे लगता है वो एक बहुत गलत बात है, बिकॉज ऐसे नहीं टेलीविजन एक्टर कम मेहनत करते। आई थिंक दे आर मोर ट्रेंड, दे आर सो मच मोर बेटर एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। उन टेलीविजन एक्टर्स को उनकी ऑडियंस हर रोज़ कंज्यूम करती है। सोचिए उनकी परफॉर्मेंसेस कितनी पावरफुल होंगी कि रोज़ जुड़ के बैठते हैं टीवी पे देखने के लिए। सो आई थिंक दैट बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन नीड्स टू स्टॉप, and television actors need to take a stand for that. They need to carry that pride that yes, we're not less than anybody and we don't need to break that barrier कि भाई हमने television किया है. So we have to stand for ourselves and we have to fight for it. Of course.
Gurpreet ji, since you have already told us that you have traveled across the world with the promotion, कोई ऐसा encounter हुआ हो अभी, अगर बाहर आप जब promotions के लिए गए तो कोई ऐसी memorable चीज़ जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं फिल्म promotions के दौरान? प्रमोशन तो अलग चीज़ है, लेकिन जो मेमोरी है वो हम लोग बहुत बार शेयर करते हैं कि हम टाइम जोन चेंज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 5 घंटे आगे है ना, वापस आ जाते हैं तो फिर यही टाइम जोन है, यूके चले जाते हैं 5.5 घंटे पीछे है, टोरंटो जाते हैं 9 घंटे पीछे है, वैंकूवर चले जाते हैं 12.5 घंटे पीछे है, तो वो है ना, तो हमें समझ अच्छा तो हमारे साथ क्या हो रहा है, यूके में भी हुआ और कनाडा में भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो बीच में ब्लैंक हो जाते हैं कई बार। हम भूल जाते हैं कि बात क्या चल रही थी, जैसे आपने कह दिया आई हैव अ क्वेश्चन फॉर 3 ऑफ हाँ, ये तो बहुत बड़ा पंगा है जब बोलते हो ना, कई बार के एंकर बोलते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है वो तीनों के लिए है, तो अब आपने उनसे शुरू कर लिया है तो पहले वो आंसर देंगे, जब तक ये आंसर देंगे, जब तक मेरे तक आता है मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वह आधी नींद में ही है, मैं भूल जाता हूँ क्या है। तो अब मुझे आइडिया से ना, वो जहाँ पे ये ख़त्म करती है मैं वहाँ आइडिया से उठा लेता हूँ कि मतलब क्वेश्चन कोई भी हो गया कि बस इसका आगे कुछ बना के दे एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, जैसे हम कोई बात कर रहे हैं बीच में ब्लैंक हो गया, तो जब वापस होश आ रहा तो मैं तेरे इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो मुझे याद आया इंटरव्यू चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके लिए मुझे लगता है आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे साथ भी बहुत है ना। लेकिन हम तो इतना ट्रैवल कर लिए, मैंने एक जगह खड़ा होके कहीं कोई स्पीच दे रहा हूँ इन्हीं दिनों में, तो मैंने कोई बात शुरू कर ली, कुछ जैसे कि ना कोई लाइंस, कोई शेर ही आप मान लो शुरू कर लिया और पहली लाइन सुना दी, बाद में मुझे पता याद ही नहीं आ रहा इसके बाद क्या था, तो फिर मुझे मैनेज करना पड़ा, पहली लाइन को 3 बार रिपीट किया मैंने, है ना, कि ताकि मुझे दूसरी याद आ जाए। अगर आप ये बोल रहे हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी कहानी ही मुझे बता रहे हो, बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स, बट लेट्स नॉट because see we are working so hard, we are working so hard कि हमें day night time zone कुछ समझ नहीं आ रहा है, but we are at it, so we want everybody to go watch the film and love us. That's beautiful. In fact, I was coming to you that since I started the show, I want you all to wrap up this interview with a request to all of your viewers, because this is going to be a very touching tale, and in fact, we are going to be looking at you in a very different avatar. Although this is going to be your 3rd time on this project itself, but हम तो एक कॉमेडियन के नज़रिए से आपको काफ़ी साल से देखते आ रहे हैं, बट अब हम आपको एक टचिंग टेल में देख रहे हैं. So what would be your request to all of the viewers for them to hop into the देखिए, theatre? मेरा जो फेसबुक, मेरा जो इंस्टाग्राम पे भी मेरे जो होते हैं ना, वो टैगलाइन होती है आपकी, क्या होती है आईडी के नीचे, हाँ, है ना, तो उसमें भी यही है कि हੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yes, पूरा अच्छे से समझ आया मुझे. है ना, अच्छे से समझ आ गया ना। तो वही है कि दो आई एम अ कमेडियन, आई हैव अ इमेज ऑफ अ स्टैंड अप कमेडियन एंड कॉमिक एक्टर, बट एट द सेम टाइम इमोशन सबके होते हैं। तो एज एन एक्टर मैंने थिएटर किया है, मैंने बहुत सा अच्छा थिएटर देखा है, मैंने पढ़ा है, तो मेरे अंदर भी एक एक्टर था, तो इसलिए मैंने पहली अरदास में प्रूव किया और फिर अरदास करा में प्रूव किया, और 3rd टाइम तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैं उस मतलब कोई लगेगा कि ये कमेडियन है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, इट्स अ पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो एक तो मैं पंजाबी सिनेमा की थोड़ी तारीफ़ कर दूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाबी सिनेमा है जिसको आप अपनी आज भी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। आप अपनी छोटे भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बाप भाई सब बैठ के देखो, 1% रिस्क नहीं होगा कि अभी कुछ ऐसा वैसा तो नहीं आ जाएगा कि सबको एम्बेरसमेंट हो। तो ये तो एक मुझे लगता है इस बात पे तालियां थोड़ी हो जानी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के देखोगे ना, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज ज़रूर लेके जाओगे साथ, वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन इसमें इतना कुछ है, कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा इस फिल्म में, आप पक्का अपने साथ लेके जाओगे। And in fact, I've seen the trailer. It looks a lot like it is going to make you weep, and it's going to touch that soft spot in your heart as well. All the very best. थैंक यू।